आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूटीआई म्यूचुअल फंड्स इन पार्टनरशिप विद सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट्स उड़ान मुंबई चैप्टर एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट में हम बात करेंगे आपके करियर को कैसे आगे लेके जाना है। और इसलिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, कुछ पैनल डिस्कशंस होंगे, कुछ फायर साइड चैट्स होंगे। एंड इन दिस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये बताना मुश्किल है कि 5 साल बाद दुनिया कैसी होगी विद दिस एआई थिंग एंड ऑल दैट, तो शायद थोड़ी सी प्लानिंग हमको एडवांस में करनी पड़ेगी। और उसके लिए आज हमने खास मेहमान को बुलाया यहाँ पे, जो कि अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, मिस्टर अभिषेक किरण गुप्ता। आप तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए अभिषेक किरण गुप्ता साहब का। मुझे ये बताइए कि अभी ये जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, ठीक है इन्होंने कोर्स किया, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट है, निकल जाएंगे, दे हैव अ वेरी बिग डिग्री इन देयर हैंड विद प्रेस्टिजियस नेम एसपी जैन, बट व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? क्या उतना काफी होता है? Everybody will come out of this room or this college with shining, charming CVs, right? Each one of you will be equally competitive, equally good. Now, what else can you offer if you come to me for a job? What will I want to see? Skills, I'm assuming you all have. Indians are smart, just let's agree on that. Okay? We are all hardworking, let's agree on that. You need to be able to speak well. Just believe me, you are a salesperson from the day you step out of this room. You have to be able to sell. I'm not saying you become a sales guy, ghadi becho, gaadi becho, but you'll have to sell yourself, right? So you're a salesperson, period. आपने सोच तो लिया, Yes. लेकिन दुनिया की अगली प्रॉब्लम ये है, आइडियाज तो शायद हम सब दे देंगे इस कमरे में जितने बैठे हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन शायद हार्डली 1 या 2 लोग कर पाते हैं। वो डिफरेंस क्या है, वो कैसे फुलफिल होगा? सोच तो मैंने बहुत अच्छा लिया, लेकिन हाँ मैं उसे कैसे रियलिटी में बदलूंगा? Yeah, guys, just मतलब you'll have to just believe me. इसको गांठ बांध लो. Ideas बहुत हैं. आप ऐसे चल के जाओगे, आप you're in the bus, you're in the aircraft, you'll have dozens of ideas because we are smart. But execution is key. Because you will stumble issues at taxation, कंपनी कहाँ चालू करनी है, 20 जन हो गए तो उसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चाहिए. You will have issues at all times. You'll have compliances at all times. Just make sure that you remain compliant at every step that you move forward. Please focus on execution. Please hire the right people. अकेले आप सब कुछ नहीं कर पाओगे. Can you do taxation and sales and IT and development? No! The most difficult thing that when you are doing a job also, by the way, even the job seekers, and if you're hiring, if you're a CEO or a founder, the most difficult thing is to manage people, hire the right people. Please make sure your human management skills are number one. That should be your number one go-to thing when you leave SP Gen. Okay, so big round of applause for Abhishek and all of you. Thank you very much, Abhishek, for this thing. Thank you. It's a really nice talk. My pleasure. हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो छोटी छोटी आपकी इन्वेस्टमेंट की आदतें हैं, ये जो आपकी हैबिट्स है, वो आपकी लाइफ में एक काफ़ी बड़ा जो डिफरेंस है वो लेके आ सकती है. सो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नीरज सुंदरानी, जोनल हेड यूटीआई म्यूचुअल फंड, जो हमें एक प्रैक्टिकल और एक आई ओपनिंग सेशन जो है वो देने वाले हैं. आपने जो भी पढ़ाई अभी तक की है, it will either get you into a job, or it will get you into a passion, profession, business, और या फिर आप मेरे जैसे कहीं पर जॉब करेंगे, right? Whatever you get into, right? The ultimate objective of whether you get into a passion, so for example, you can be a photographer or any other hobby that you have. Remember, passion is not enough to pay your rents, correct? Unless you are damn good at it, right? So there are passions, then there are professions. So you can either become an architect, doctor, lawyer. No. इस वाले room के लिए तो architect, doctor चलेगा नहीं. Lawyer, that may be some other college, right? But you will become some profession. Or you will get into a business, meaning you will employ people, perfect? Or you will get into a job of any kind. It can be a marketing job, it can be a sales job. Essentially, we all are working to create a reservoir, right? A reservoir, which means a financial reservoir, which means have enough money by your side so that it can give you a lot of cash flows whenever you need them. Example, if you put 15,000 rupees aside every month,
keep investing it every month for the next 25 years. Market gives you around 12% return. The money grows to around 2.82 crore rupees, right? It's easy, everybody knows about it, right? But what we lack is the discipline. There are only three things which get into the recipe of making money or destroying money, right? There are only three things that you should remember. No big jargons, कोई बहुत लंबे चौड़े lectures नहीं. You got to begin early. You have to have compounding by your side, and you should take care of the inflation. Your investments have to take care of the inflation. So the first thing that you should understand in finance and in investments is that begin early. For those of you who plan to retire at 60, right? And if you want, say, 1.5 crore rupees at your retirement, if you start at 25 years of age, which means immediately after going out from the college, आप कॉलेज से निकले, पहला जॉब लगा, पहला प्रोफेशन चालू किया या पहला बिजनेस चालू किया, आपने 25 साल से अगर हर महीने 2,300 रुपए डालना चालू कर दिया, रफली एट अराउंड 12% ऑफ रिटर्न, यू विल रिटायर विद 1.5 करोड़ रुपीज. करेक्ट? बट हो जाता है कई बार, नहीं हुआ, मूड रह गया किसी भी वजह से. You don't start at 25, you start at 30. Then you don't have to put 2,300 rupees, you have to put 4,000 rupees. Look at what all this means. Every 5-year delay doubles the money that you have to put to reach 1.5 crore rupees by 60, right? And that is the problem of delaying, right? So this is what Albert Einstein said, that compounding is the 8th wonder of the world. Lot of us want to chase returns. It is glamorous. आज पैसा डालो, कल डबल होना चाहिए, इतना बन जाना चाहिए, उतना हो जाना चाहिए. No one, almost no one, thinks about कितने time के लिए डालना है, right? Comes out that time is the most important factor in investment. Believe me, जब हम dinner table पे घर पे बैठते हैं, our discussion on inflation is not about टमाटर कितना महंगा हो गया, आलू कितना महंगा हो गया, बटेटा कितना महंगा. No, nothing like that, right? That is inflation, but we don't get worried about that inflation. The inflation that we get worried about is yesterday's luxuries are today's necessities. कई बार जब आप पैसे कमाएंगे, सैलरी आएगी, और ये काफ़ी एड्रेनल है कि सैलरी क्रेडिटेड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन if you are not doing investments and there are more SMS which are telling you EMI debited, तो फायर नहीं हो सकता है. Correct? And therefore, please go out, buy your car, please go out, buy the home, go on the luxury vacation that you want, but not at the cost of savings and investments. Right? Thank you. आपको जो आपकी फ्यूचर है उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर होना है, आई मस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे और उसी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सुंदरानी जी ने अभी तक बोला, लेकिन अब वो हमारे साथ बैठने वाले हैं, जो भी आपके सवाल हैं उनको एड्रेस करने वाले हैं. एक बार फिर से तालियां हो जाए मिस्टर सुंदरानी के लिए. और अब है बारी आपके सवालों की. REITs is trending. So a lot of REITs mutual funds are also coming. So if like Mindspace and all, so if we as youngs want to invest in real estates as well as mutual funds, so will it give a growth, like does it has a growth prospect for a longer term? Like, so Aishwarya, you asked a very good question. A lot of people think mutual funds is bole to only equity, correct? While mutual funds is not the end product. What mutual fund does is it collects money from a lot of people, gives it to an expert, and these experts put money into different asset classes. So there are mutual funds which put money in equity, there are mutual funds which put money in debt, and there are also mutual funds which put money now in commodities, gold, silver, etc. There are also mutual funds which put money on real estate, right? So you will have to figure out what is the kind of combination that you want, how much equity, debt, gold, and real estate, or any one of them, right? So there are enough options out there. There are real estate investment options. You'll have to figure out how much part of your money do you want to put in one of those asset classes. Do we have Virendra here? Hello, sir. Hi. So there are students who are aspiring to work abroad. So while considering investing in India or the local market, how should they consider it? यार मैं तो ये बोलूँगा कि इंडिया के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है ही.
But more than the emotional connect, see, it is about investments, right? You should look at a combination of the opportunities available in this country. The demographic dividend in this country is very, very strong and will sustain for a very long time, right? And there are opportunities outside India also, right? For example, America led the tech growth, right? China leads it in terms of manufacturing. Japan leads it in terms of precision. So if you have the ability to work out which are the best companies or mutual funds outside this country, you should definitely have a combination of uh, offshore and onshore. थैंक यू सो मच मिस्टर सुंदरानी Thank you so much. फॉर जॉइनिंग अस, और साथ ही साथ इतने सारे जो सवाल पूछे गए और इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने जो दी। जो रियल एम्बिशन होता है वो तभी ग्रो होता है जब हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरीके से बैलेंस हो। अगर यहाँ पे एक भी जो लाठी है वो हमें टूटती हुई दिखाई देती है तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमें हैंडीकैप होता हुआ दिखाई देता है। अब जो वेलनेस है वो केवल पर्सनल गोल नहीं है, बल्कि जो सक्सेस है उसका भी जो की फाउंडेशन है वो भी एक बैलेंस ही है। तो चलिए इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसे लीड करने के लिए वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम विपिन भाट फ्रॉम CNBC आवाज़, और उनके साथ यहाँ पे 3 जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तीनों का बड़ी जोर से तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मनीषा ठक्कर, लाइफ कोच एंड काउंसलर, डॉक्टर अमिता ठक्कर, होम्योपैथी एंड होलिस्टिक डॉक्टर, माइंड बॉडी थेरेपिस्ट, एंड श्रोता जाजू, होलिस्टिक वेलनेस कंसल्टेंट। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम देम ऑल। मुझे याद आता है कि जब हम इनकी एज में थे तो शायद दुनिया ऐसी नहीं थी, बहुत अलग थी। और अब जब ये लोग हैं एट द एज ऑफ 25 मे बी अराउंड इन 2025, तो दुनिया काफ़ी हद तक बदल चुकी है। मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ मैम, क्या वो चेंज आ गया है? स्ट्रेस तो देखिए पहले भी था, ऐसा नहीं था कि, बल्कि मैं कहूँ कि अब तो साधन ज़्यादा हैं, सुविधाएं ज़्यादा हैं, फिर भी पहले की लाइफ में स्ट्रेस कम होता था, आज की लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है। क्या बदल गया है? पहले social media was not there. Of course, the mobile phone was not there. We couldn't get connected with everyone very easily. And everyone was not so modern. Everyone was not so open-minded. There were too many restrictions when I was at your age. Mobile, any internet, and the world has become very small. So people can connect very easily, and this is a reason. This is a very, very big change. और पहले ऐसे था where we used to obey parents much more. We used to be fearful. And now it's like we back answer. It's very easy for us to disrespect. It's very okay to just be very casual, and that's the major difference. But yes, it has a lot of benefits also. For you, the growth is going to be extremely fast. We should see only good. We should focus on good. We should just see what are the good points, what are the benefits, and we should take the maximum opportunity and make the best out of what we have, the support system that we have, and be good anyway. And that's it, yeah. So let's take it little further. Shweta ma'am, as Manisha ji says कि जो 2-3 चीज़ें बदली हैं उसमें ये हुआ है कि we are more connected. So I think यहाँ पे एक dichotomy है या irony है कि we are more connected but equally we are more alone now. कनेक्टेड तो हम बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उतने ही अंदर सिमट गए हैं। आज से 20-25 साल पहले हम शायद ज़्यादा कनेक्टेड थे इंडिविजुअली, नाउ वी आर कनेक्टेड ओवर डिवाइसेस। तो ये जो चेंज है, इज इट द रीज़न? एंड सेकेंडली व्हाट ही सेड कि द पेस ऑफ लाइफ इज़ नाउ वेरी फास्ट। जो रेट ऑफ चेंज है वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले जो चीज़ 10 साल में होती थी वो शायद 1 साल में हो जाती है, एंड आफ्टर कोविड ये तो और ज़्यादा तेज़ हो गया है। जो चीज़ें शायद 10-15 साल आगे के लिए प्लान थी वो बहुत जल्दी आ गई बिकॉज ऑफ द कोविड। क्या ये 2 चीज़ें ही हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही हैं? अगर हम हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं तो व्हेन दे वेर इन देयर 50s एंड 60s तब उनके घर होते थे। अभी 30s में 25-30s में ही सब कुछ चाहिए, घर, गाड़ी, वेकेशंस, लग्जरीज। तो दिस और अब इज तो SIP भी करनी है। हाँ, सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ स्ट्रेस। ओके,
जो चीज़ टाइम पे होनी है वो टाइम पे ही होगी. ऑफ कोर्स यू हैव टू अचीव एवरीथिंग बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. सो ये हेल्थ पे जो ओवरलोड आता है दैट कॉजेज स्ट्रेस एंड देन मतलब अगर सब कुछ है भी लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो क्या यूज़ है ना? यस. राइट. तो अमिता जी हैं हमारे साथ जो कि डॉक्टर हैं. अमिता जी, नो डाउट हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी, बट दौड़ भाग की ज़िंदगी है, अचीव भी करना है. नो डाउट कितना भी हम अपने आप को समझाएं, लेकिन वो रेट रेस में सब लोग हैं. कार लेनी है, घर लेना है, यहाँ घूमने जाना है, वो वेकेशन करना है, और हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चों को ये समझाएं कि अरे नहीं ये सब नहीं करना है. सो वो तो होगा, बदलती दुनिया के साथ ये सारी चीज़ें आएंगी, बट कैसे हम उसे फिर मेंटेन करें? मतलब वो मेंटल लेवल पे डील होगा, फिजिकल लेवल पे डील होगा, हाउ टू डील विद दैट? So there's a lot of information for this current generation. There's a lot of exposure. There is a lot of facilities. And what I have noticed is there's so much of confusion, which was not so much for us because we had limited choices. So this, in my understanding, number one is the reason for stress. And there could be many other reasons, but they don't know. And there's everything that we want. And we don't know how to do it, but we still want it. So there is a over demand on the mind. The conscious mind, I would precisely say that, which is constantly thinking, wanting, understanding, getting so much information to do, reaching out for financial investments. So the first thing I would recommend everyone to not forget to invest in yourself. Okay? Because investment in yourself is about investment in your mental state, emotional state, and your body, because mind and body are connected. Thank you very much for this insightful session, ma'am. Thank you. फिनांस और टेक्नोलॉजी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी सारे चेंजेस हमें डेली लाइफ में करके दिखाता है. और ये दोनों मिलके हम देख रहे हैं कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे सीखने का तरीका और इनफैक्ट हमारा इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है. इस सेशन के लिए अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम विपिन भाट फ्रॉम CNBC आवाज़ टू टेक दिस डिस्कशन अहेड. और उनके साथ स्टेज पे आ रहे हैं डॉक्टर फिरदौस खान, एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिप्टी डायरेक्टर GCGM एट SP Jain स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, जो हमें बताएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर के लीडर्स को और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को शेप कर रही है. लेट्स वेलकम देम बोथ विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. डॉक्टर खान, स्टार्टिंग विद की फिनेंस एंड टेक्नोलॉजी, सो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये कुछ बहुत नई चीज़ है, लेकिन स्टिल अभी इन द एज ऑफ AI नाउ एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. अगर मैं स्टॉक मार्केट से बात करूं, क्योंकि चैनल उसमें डील करता है, तो वहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग्स आ गया है, AI का उसमें काफ़ी सारा यूज़ हो रहा है. इट्स इंटायरली चेंजिंग द होल सिनेरियो, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे फाइनेंसेस मैनेज होते हैं. बट इन जनरल अगर मैं आपसे सवाल करूं ताकि बच्चों को एक आइडिया लगे कि फाइनेंस आज का और अभी जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, हाउ दे आर गोइंग हैंड इन हैंड, उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं? जी, पहले तो ऑफ कोर्स फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का बहुत पुराना नाता है. लाइक दैट कनेक्शन इज़ वेरी ओल्ड बिकॉज फाइनेंस डिपेंड्स ऑन लिटिल बिट ऑफ स्ट्रक्चर. राइट. तो ऑफ कोर्स ML जो चेंज आया है वो सबसे बड़ा चेंज आया है. एंड वो भी कोई नया आइडिया नहीं है, 1950 से चल रहा है वो. मगर एक दौर चला कि व्हेन यू हैड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यू हैड सुपरवाइज्ड लर्निंग. तो एक pre-2010 का ज़माना था जब आप बेसिकली स्टॉक मार्केट कर रहे हो, आप बैग ऑफ वर्ड्स देख रहे हो, सेंटिमेंट को एस्टिमेट कर रहे हो. उतना डेटा नहीं था, मगर एक कंसेप्ट था कि मतलब एक ओपिनियन होता है, लोग रिएक्ट करते हैं. स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस ऑफ रिएक्शन, राइट? मगर एट द सेम टाइम देयर आर सम फंडामेंटल्स जिसकी तरफ से वो मार्केट चलती है. तो जब ये पूरा दौर चला कि कंप्यूटिंग आप कर सकते हो, ML है आपके पास, तो 2010 के बाद एक दौर आया है वे यू आर लुकिंग एट रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ योर कोडिंग. तो आपका जो डेटा है वो इम्प्रूव होता है हर बार जब कुछ नया होता है. तो ML के तरफ से फ्रॉड डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस जो आपका होता है, या आप पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करते हो, या अभी तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के भी एक्ट्स आ गए हैं, तो मार्केट्स भी कनेक्ट हुए हैं.
और बहुत सारा डेटा ऑनलाइन आया है। पहले के ज़माने में फाइनेंस ना टुकड़ों में लोग पढ़ते थे। आई थिंक नाउ बिकॉज ऑफ जेन एआई एंड अभी तो आपकी लर्निंग आपके वक्त के ऊपर है, आपकी इंटरेस्ट पे है। आई थिंक नाउ इट्स द टाइम टू गो बैक टू इफ फाइनेंस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस डूइंग? I think you no longer have to think of only accounts or only valuation, but you have to go broader now. तो a lot of solutions will come, new solutions will come. तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स थोड़ा ब्रॉड जाएं, बिकॉज ये लो लेवल वर्क तो मशीन कर रही है ना। अब अगर आप सिर्फ ऐप ही बनाओगे तो उसमें क्या मजा है? बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए। हम एक या दो चीज़ें जो आप एज ए टीचर लगता है, क्योंकि सबसे बेहतर इन लोगों को आप ही जानती हैं, इन्हें करना चाहिए आज की तारीख में। आई थिंक नंबर वन चीज़ जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के हाथ में पैसा है एंड यू आर यूजिंग मनी विच इज़ ग्रेट। आई मीन यू लर्न अर्ली ऑल्सो एंड आई थिंक यू हैव क्लैरिटी कि पैसा क्या कर सकता है, बट व्हाट इज मिसिंग इज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग और गोल बेस्ड यूज ऑफ योर मनी। प्रोफेसर खान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं भी क्लासरूम में ही बैठा हूँ, उससे बाहर नहीं हूँ। इट्स I'll take that as a compliment. Thank you very much for talking to us and thank you very much all of you for listening. इसी के साथ हम UTI म्यूचुअल फंड इन पार्टनरशिप विद CNBC आवास प्रेजेंट्स उड़ान मुंबई चैप्टर एट SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट के एंड पे आ गए हैं। अ ह्यूज थैंक यू टू ऑल द स्पीकर्स, ऑडियंसेस एंड हमारे पार्टनर UTI म्यूचुअल फंड को जिन्होंने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया है। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। सबसे पहली चीज़ ग्रोथ, किस तरीके से हमें ग्रो करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें बैलेंस अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना हमें चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरीके से बैलेंस आउट करनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो पर्पस है वो क्या है लाइफ का, उस पर्पस को आइडेंटिफाई करना, ये चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए इसी के साथ इस कॉन्वर्जेशन को अपनी लाइफ में भी आगे चल के अप्लाई करने की जितनी हो सके कोशिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन टू बीइंग अ पार्ट ऑफ उड़ान एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.